आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2017 वेरिएंस 42। Describe and explain variation in thermal stabilities of carbonates of group 2 elements. So thermal stabilities increases down the group because ionic radius increases, charge density decreases, if charge density decreases, then distortion of electrons of carbonate ions becomes weaker and therefore thermal stability increases. Suggest and explain a reason why sodium carbonate is more stable to heat than magnesium carbonate, because sodium carbonate में सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी कम है because sodium ion has less charge density than magnesium ions. Obviously, magnesium has 2+ charge, sodium has +1 charge. So sodium ion की charge density कम होगी, इसलिए वो more stable to heat होगा. Sodium hydrogen carbonate and potassium hydrogen carbonate decompose on heating to produce gases in the solid metal carbonate. Write an equation for the decomposition of KHCO3. तो ये हो जाएगा KHCO3 is converting into potassium carbonate, water and carbon dioxide. और यहाँ पर 2 प्लग इन कर दीजिए, ठीक है. ये भी गैस होगा, ये भी गैस होगा, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है. Predict sodium hydrogen carbonate or potassium hydrogen carbonate decompose at lower temperature. Obviously, sodium hydrogen carbonate will decompose at lower temperature because it has a high charge density. Because of a small ionic radii and high charge density. जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर ऑफ भी ज्यादा हो जाएगी. So polarization of sodium ion also increases. ठीक है.
use the data in the table below, relevant data from the data booklet, to calculate the lattice energy of potassium oxide. ठीक है. So बेटा हमारे पास lattice energy calculate करने के लिए फॉर्मूला है delta H phi F equals to delta H phi A plus ionization energy plus atomization of non-metal plus electron affinity plus lattice energy. So formation of potassium oxide is minus 361. Atomization of potassium is plus 89. Since we have 2 potassium in this formula, इसलिए multiply by 2 करूंगा equation को. First ionization energy of potassium is not given, which means I need to take out the value from the data booklet. Data booklet में check करेंगे तो 418 आएगी value. And since 2 moles हैं potassium के, इसलिए multiply by 2 करूंगा. Plus atomization of non-metal is not given. I mean atomization of oxygen is not given. So we need to consider the bond energy value of oxygen, which is 496. उसको divide by 2 करेंगे because atomization is always applicable for 1 mole. Plus first electron affinity of oxygen is minus 141. Second electron affinity of oxygen is minus 798. Plus lattice energy मुझे calculate करनी है. मैं इन सबको अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास लैटिस एनर्जी की वैल्यू आएगी -2280 किलो जूल्स पर मोल. तो -2280 किलो जूल्स पर मोल. स्टेट whether lattice energy of sodium oxide would be more negative, less negative, or the same as that of potassium oxide. Give reason for your answer. तो ऑब्वियसली बेटा सोडियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी मोर नेगेटिव होगी. हैज मोर नेगेटिव लैटिस एनर्जी. क्यों होगी लैटिस एनर्जी? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो बिटवीन द ऑपोजिट आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगी. ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी strong electrostatic attraction exists between opposite ions. Complete the table to show how both silver nitrate and ammonia could be used to distinguish between solutions of NaCl and Ni. Test performed. Add acidified solution of silver nitrate. सोडियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और सोडियम हाइड्राइड के साथ बेटा येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. ओके. उसके बाद है विद एक्वस अमोनिया व्हाइट प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व होकर कलरलेस सॉल्यूशन देंगे. White precipitates are soluble giving colorless solution. With sodium iodide, yellow precipitates remains insoluble. Okay.
In this question, PR means solution in propanol. Sodium iodide is soluble in propanol, giving sodium ions and iodide ions. Sodium chloride is insoluble in propanol. The reaction between 2-chlorobutane and sodium iodide in propanol is shown. The rate of this reaction can be investigated by measuring the electrical conductivity of the reaction mixture. The electrical conductivity changes as the reaction progresses due to the precipitation of NaCl produced. Suggest how the electrical conductivity will change as the reaction proceeds. Explain your answer. Obviously, electrical conductivity decreases क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म हो रहा होगा और सोडियम आयोडाइड जो है वो यूज हो रहा है. ठीक है. So electrical conductivity decreases because सोडियम और आयोडाइड आयंस जो है वो सॉल्युबल होते हैं इन प्रोपेनॉन, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी. अब जब रिएक्शन हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा which is insoluble, तो जाहिर सी बात है आयंस अवेलेबल नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. सो हम लिखेंगे बिकॉज number of ions decreases in the solution. Now the next is describe suitable method for studying rate of this reaction at temperature of 40 degrees Celsius using the following: an electrical conductance meter which measures the electrical conductivity of solution of known concentration of 2-chlorobutane in propanol and sodium iodide, stop clock, access to standard laboratory equipment. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सॉल्यूशन को वाटर बाथ पे हीट करूंगा at 40 degrees Celsius. मैं कहूंगा heat the solution at 40 degrees Celsius on water bath. इसके बाद है आपके पास इन दोनों सॉल्यूशंस को मैं मिक्स करूंगा. Mix known volume of each solution, और जैसे मैं सॉल्यूशन को मिक्स करूंगा स्टॉप वॉच को इमीडिएटली स्टार्ट करूंगा. Start the stopwatch immediately. मैं डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर कंडक्टेंस को मेजर करूंगा. Measure the conductance at a regular time interval. और जब मैं मेजर कर लूंगा कंडक्टेंस को तो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा कंडक्टेंस वर्सेस टाइम टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन. So plot a graph of conductance against time to find the rate of reaction. ठीक है. Again, the rate of this reaction was measured at different initial concentration of the two reagents. The table shows the results obtained. Deduce the order of reaction with respect to each. Explain your reasoning. Order with respect to this. तो अगर मुझे ये order calculate करना है तो जाहिर सी बात है मैं इन दो experiment को consider करूंगा because
ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल्स टू 0.06 ओवर 0.10 पावर m। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। आयोडाइड के लिए मैं ऑब्वियसली इन दो एक्सपेरिमेंट्स को यूज करूंगा बिकॉज ये दोनों एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट हैं। सो मैं 1 और 3 लूंगा, दैट इज 3/5 इक्वल्स टू 0.03 ओवर 0.05 पावर n, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। वो कह रहे हैं राइट द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन स्टेटिंग द यूनिट्स एंड द रेट कांस्टेंट। तो वो आपसे रेट इक्वेशन मांग रहे हैं, यूनिट स्टेट करने के लिए कह रहे हैं रेट कांस्टेंट की। तो रेट इक्वेशन हो जाएगी रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ 2-chlorobutane which is CH3 CH2 CHCl and then CH3, और ये हो जाएगा आपके पास आयोडाइड आयंस। यूनिट ऑफ के आप जानते हैं, रेट की यूनिट होती है मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स, और इन दोनों की यूनिट जो है वो मोल स्क्वायर DM-6 हो जाएगी। तो यूनिट बेटा आपके पास बनेगा, ये यूनिट इससे कैंसिल होगी बेटा, यूनिट बनेगी आपके पास सेकेंड इनवर्स इक्वल्स टू मोल पर डीएम क्यूब, राइट। सो फाइनल यूनिट होगी आपके पास मोल इनवर्स डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द रिलेटिव रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4। बेटा रिलेटिव रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4 मैं उस वक्त डिटरमाइन करूंगा जब मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को उठाकर इस रेट इक्वेशन में प्लग इन करके के की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा, और फिर मैं के की वैल्यू को उठाकर दोबारा से रेट इक्वेशन में प्लग इन करके ये फाइंड आउट करूंगा। तो हम पहले तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रेट है वो देख लेते हैं, 3.06.03। ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू के 0.06 एंड 0.03। तो यहां से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 1,666.6, ठीक है। अब मैं इस के की वैल्यू को रेट इक्वेशन में प्लग इन करूंगा। के की वैल्यू है 1,666.6। कंसंट्रेशन ऑफ 2-chlorobutane कितना है, 0.08। कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड 0.04। तो यहां से आपके पास रेट कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके मुझे रेट मिल रहा है 5.3 मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो लिख दीजिए यहाँ पर 5.3 मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड इनवर्स, ठीक है। डी पार्ट, suggest the mechanism for the reaction of 2-chlorobutane with iodide ions। ये है जनाब mechanism 2-chlorobutane with iodide ions। Draw outline the steps involved including the following: all relevant lone pairs and dipoles, curly arrows to show the movement of electrons, with the structure of any transition element or state। Okay guys, 2-chlorobutane is basically the secondary alkyl halide। तो secondary alkyl halide undergoes either SN1 or SN2। तो वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने SN2 करना है तो फिर ट्रांजिशन स्टेट लिखेंगे, अगर आपने SN1 करना है किसी बच्चे ने तो वो इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। बिकॉज सेकेंडरी अल्काइल halide undergoes both SN2 and SN1। So I'll go for the most convenient thing and it must be CH3H and then C2H5, और ये है आपके पास Cl, और आप जानते हैं कि ये स्लाइड नेगेटिव और ये कार्बन स्लाइड पॉजिटिव।
और आप आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आयोडाइड आयंस पे लोन पेयर, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज आता है वो मेंशन करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट होगा 2 आयोडोब्यूटेन प्लस क्लोराइडाइन, ठीक है। This reaction was carried out using a single optical isomer of 2-chlorobutane. Use your mechanism in 1 to predict whether the product will be single optical isomer or a mixture of 2 optical isomers. Explain your answer. मैंने जो मैकेनिज्म लिया है वो SN2 है, और जब SN2 लेते हैं तो उसमें सिर्फ सिंगल ऑप्टिकल आइसोमर मिलता है, ठीक है। SN2 mechanism gives only single optical isomer। अगर मैं यहाँ पर SN1 लेता जिसमें मैं इंटरमीडिएट रखता, तो आप जानते हैं कि इंटरमीडिएट में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 ज्योमेट्री क्या होती है इंटरमीडिएट की, प्लेनर, एंगल कितना होता है 120, तो फिर उसमें इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। इक्विमोलर मिक्सचर किसे कहते हैं, रेसमिंग मिक्सचर को बोलते हैं। तो जब इक्विमोलर मिक्सचर बनता है तो 50% लेवोरोटेटरी 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी मिलते हैं, इसलिए वो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा था, मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू नाउ वो क्यों कह रहा है मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर SN1 लेता तो मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स यानी रेसिमिक मिक्सचर यानी इक्विमोलर मिक्सचर मिलता। क्योंकि मैंने SN2 मैकेनिज्म लिया इसलिए नहीं बनेगा। State the number of peaks that would be seen in the carbon 13 NMR spectrum of this। भाई टोटल 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है तो 4 पीक्स होंगी आपके पास। वो कह रहे हैं देयर आर 2 isomers of this that have fewer peaks, 2 isomers of this that have fewer peaks in carbon 13 NMR spectrum। इसका मतलब इसके आइसोमर होंगे। सो पहला आइसोमर जो है वो कह रहे हैं draw the structures and isomers and state the number of peaks for each isomer। तो 2-chlorobutane का ब्रांच चेन भी तो बन सकता है, मिसाल के तौर पे ये बना दें हम। And we have done this example in class, and according to that lecture this compound has only 2 chemical environment। देखो ये तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस के साथ क्लोरीन से अटैच हैं, so they will show only 1 chemical environment। और ये क्लोरीन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 केमिकल एनवायरनमेंट है। अगर मैं ब्रांच चेन बना लूं इस तरह से, एक ये हो जाएगा, ये सेकंड है, और ये दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो क्लोरीन के साथ सेम डिस्टेंस से हैं, व्हिच इज व्हाई इन दोनों कार्बन एटम्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा। जब इन दोनों कार्बन एटम्स का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होगा तो आपके पास टोटल कितने कार्बन का कितनी पीक्स आ जाएंगी, 3 पीक्स आ जाएंगी यहाँ, ठीक है। सर हम 1 क्लोरोब्यूटेन भी तो ले सकते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन नहीं ले सकते, CH3 CH2 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 Cl। This compound has again 4 peaks। जबकि उसने मुझसे क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास कितनी पीक्स हैं, फ्यूअर पीक्स हैं, यानी 4 से कम होनी चाहिए मेरे पास, ठीक है, 4 से कम होनी चाहिए, इसलिए मैं 1 क्लोरोब्यूटेन को कंसिडर नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, in a molecule of SOCl2 the sulfur atom has 4 bonds। Draw a dot and cross diagram of SOCl2, show the outer electrons only। ओके, देखिए क्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन सब ने
ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, और हम ये भी जानते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो मैं सल्फर लेता हूँ, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6। अब मैं लेता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। सही। अब मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। आप नोट करें, ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये भी ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, और ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। When SOCl2 is reacted with carboxylic acid to produce an acyl chloride, two acidic gases are formed. ठीक है, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक HCl. 1 gram sample of carboxylic acid was treated in this way, and the gases were absorbed 60 cm cube of 0.5 mole per dm cube NaOH in excess. Write equations for the reaction between NaOH and HCl. तो बेटा जब NaOH और HCl का रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे NaCl एंड वाटर में। सिमिलरली जब NaOH, क्योंकि एक्सेस अमाउंट के अंदर है तो 2 मोल्स लूंगा मैं, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम सल्फाइड एंड वाटर में। ठीक है, वो कह रहे हैं the excess NaOH was titrated with 0.5 mole per dm cube hydrogen ion. This requires 10.8 cm cube of hydrogen ion solution to reach the end point. Calculate the total number of moles of NaOH that reacted with SO2 and HCl. Okay. तो मुझे NaOH का एक अमाउंट ये गिवन है, सही है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशियल मोल्स ऑफ NaOH। आपको 60 cm क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, 0.5 कंसंट्रेशन है, आप 1000 से डिवाइड करें, आपके पास मोल्स आ जाएंगे NaOH के, विच इज 0.03 मोल्स। ठीक है, आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है, आप मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कैलकुलेट कर लें। आपके पास है 10.8 into 0.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास इससे रिलेटेड मोल्स आ जाएंगे 5.4 into 10 to the power minus 3 मोल्स। ठीक है, आप जानते हैं NaOH और HCl में 1:1 का रेशो है। अगर ये इनिशियल मोल्स थे और ये रिएक्ट हो रहे हैं तो बच कितने जाएंगे? रिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH इनिशियली कितने हैं? 0.03, उसमें से रिएक्ट कितने हो रहे हैं? 5.4 into 10 to the power minus 3 मोल्स। तो बच कितने जाएंगे आपके पास? यहाँ से आपके पास बच जाएंगे 0.0246 मोल्स, और ये वो मोल्स हैं जो कि रिएक्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से। that react with sulfur dioxide, 0.0246। ठीक है, calculate the number of moles of RCO2H that produces SO2 and HCl। ओके, ये दोनों गैसेस, गाइस ये दोनों गैसेस रिएक्शन कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ NaOH से, ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि RCO2H
और NaOH के दरमियान मोलर रेशियो 1:3 का है, क्योंकि वो जो दो गैसेस हैं वो 3 मोल्स ऑफ NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं। तो अगर आपने NaOH कैलकुलेट किया है 0.0246, तो बताइए मोल्स ऑफ RCWH कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपके पास 8.2 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, अलर्ट रहना। वो कह रहे हैं क्या, हेंस कैलकुलेट द एमआर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा मैंने आप लोगों को मास बता दिया था, 1 ग्राम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मोल्स आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, ये रहे। तो मास और मोल को डिवाइड करेंगे तो एमआर आ जाएगा। 1.0 डिवाइडेड बाय मोल 8.1 इंटू 10, एक मिनट बेटा, 8.2 इंटू 10⁻³ 8.2 इंटू 10⁻³ मोल। तो एम आर की वैल्यू हो जाएगी 121.75। 121.95 हो जाएगी। ठीक है, वो कह रहे हैं द आर ग्रुप कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, such is the molecular formula of this. Okay, that's going to be the tricky part. देखो CWH है आपके पास, it has a mass of 45, तो 121.95 को सब्ट्रैक्ट कर दो 45 से, और 45 तुम्हारे पास क्या है, CWH। तो ये तुम्हारे पास बनेगा तकरीबन 76.9 बनेगा। और 76.9 का मतलब क्या होता है, 77। और 77 किसका मास होता है, बेंजीन का, C6H5 का। इसका मतलब R इज बेसिकली C6H5। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5 CWH। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। The following synthetic route shows a carboxylic acid can be converted into an amine. Suggest a reagent for step 3. अगर CO को CH2 में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, यानी अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करेंगे। एंजेलिक एसिड, इसका मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, इज अ नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द एंजेलिका प्लांट। एंजेलिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म दिस, दैट मींस कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ एल्कीन भी है, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। टी अंडरगोज द अबव सिंथेटिक रूट टू फॉर्म एन अमाइन। ठीक है, जब हम इसको हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करते हैं टी बनता है। फिर टी को हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो इस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक हो गया। यू कैन ऑल्सो बी मेड बाय रिएक्टिंग वन ब्रोमो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन ऑल्सो बी मेड बाय रिएक्टिंग वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद अमोनिया। यानी ये जो यू है ये बनता है आपके पास इस वन ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन के थ्रू। बोथ एंजेलिक एसिड and T exist as stereoisomers. तो एंजेलिक एसिड बेसिकली स्टेरियो आइसोमर्स हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। बिटवीन द कार्बन एटम डबल बॉन्ड ले लीजिए, एक CWH है और एक एल्कीन है, तो एल्कीन लिख दिया। सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर H आ जाएगा और ये CWH आ जाएगा आपको, राइट। अब अगर मैं इस कंपाउंड को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाऊं तो T बनेगा। ठीक है, और टी का मतलब ये है कि एक H यहाँ ऐड होगा, एक H यहाँ ऐड होगा, तो बेटा ये इस तरह से बन जाएगा CH3। ये H ऐड होने के बाद हो गया CH2, फिर ये H ऐड होने के बाद हो गया CH, इस CH के ऊपर CH3 एज इट इज,
और ये COH एज इट इज। और अब आप नोट करें कि इसमें कायरल कार्बन है। वो यही तो कह रहा था कि टी एंड एंजिलिक एसिड दोनों में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल है, इसमें ऑप्टिकल है। अब वो कह रहे हैं कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन्स को जब अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन एज इट इज लिखते हैं हम, 1 2 3, ठीक है, एंड दिस वन इज 4। ये NH2 हो गया। अमोनिया से जब रिएक्शन करेगा ना तो ब्रोमीन हट जाएगा, उसकी जगह पे NH2 आ जाएगा। ये CH3 है, ये CH2, CH, CH2, CH3, सही है। Oh my goodness. यानी वो ये कह रहे हैं, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि CH3 है आपके पास, CH2 है, CH, Br, CH3, CH2Br। तो कह रहे हैं जब हम इसको अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगी आपके पास। State the type of isomerism shown by angelic acid and T. Angelic acid में, sorry guys, angelic acid में बेटा आपके पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और कंपाउंड टी के अंदर आपके पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद है आपके पास a number of isomers with a formula exist. The general formula is this: each isomer contains a 6 coordinated chromium 3 ions in an octahedral complex. Water molecule not directly bonded with the chromium atom are held in the crystal lattice as water of crystallization. The chromium chlorine bond is not easily broken, and so chloride bonded with the chromium in the complex does not react. Okay. Okay, and 1 gram sample of 3 of the isomers were dissolved in separate sample of water, and excess of silver nitrate was added to each of the mass of HCl form measured. Okay. The number of moles of HCl form was calculated. The table shows the result. Okay. Calculate the MR of this. Beta chromium, वाटर और क्लोरीन। तो क्रोमियम का मास होता है, AR होता है 52, वाटर का मास होता है 18 इंटू 6 कर दूंगा, क्लोरीन का MR होता है 35.5 इंटू 3 करूंगा, तो मेरे पास मास आ जाएगा 266.5। ठीक है, अलर्ट रहना बहुत। वो कह रहे हैं यूज द डेटा इन द टेबल अबव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N फॉर ईच ऑफ द आइसोमर। Complete the table below with the value of N and the formula of each isomer. In the style of the general formula given above, show you working at least one calculation of N. Okay. अच्छा, हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला है CrH2O taken 5Cl Cl2 NH2O। ठीक है, अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाऊं तो ऑब्वियसली मुझे 2 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट चाहिए, इसलिए क्योंकि ये दो फ्री क्लोराइड आयंस हैं, ये दो सिल्वर नाइट्रेट आयन से रिएक्शन करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे 2AgCl में। ठीक है, हम सबसे पहले यहां से मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालते हैं। मास 1 ग्राम दिया हुआ है, MR 266.5 है, तो आपके पास मोल्स कितने आ जाएंगे 0.00375 मोल्स।
ठीक, आप जानते हैं ये 1 मोल है, आप जानते हैं ये 2 मोल है, राइट। अगर ये 0.0375 मोल्स हैं तो बताइए ये कितने होंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7.5 इंटू 10⁻³ -3 मोल। यानी इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले को यूज किया तो मेरे पास मोल्स कितने हैं सिल्वर क्लोराइड के 7.5। अब टैली करें ये मोल्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये मोल्स सिल्वर क्लोराइड के यहाँ लिखे हुए हैं। इसका मतलब जो बी है ये उसका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू कहाँ लिखी हुई है मैंने, एन की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि अंदर एक ही क्लोरीन एटम लिया है मैंने। सही है, तो यहाँ पर बी की एन की वैल्यू क्या होगी 1, और फॉर्मूला मैं ये लिख के दे देता हूँ आपको, CrH2O टेकन 5Cl Cl2 .H2O। ठीक है, अब आप एक काम और करें, इसी तरह की एक और वर्किंग कर लीजिए। ये हो जाएगा CrH2O टेकन 5, दिस टाइम Cl2, यानी 2 क्लोरीन इनसाइड द ब्रैकेट, एक बाहर, और 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्योंकि बाहर सिर्फ एक ही क्लोराइड है, इसलिए सिर्फ 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके AgCl बनाएगा। भाई ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। अगर आपने 0.0375 मोल्स कैलकुलेट किए थे तो इसकी भी मोल्स कितने होंगे 0.0375, तो 0.0375 आपने यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आइसोमर ए का स्ट्रक्चर बनाया, और इसमें एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 2, और फॉर्मूला क्या बन रहा है मेरे पास, CrH2O टेकन 5Cl2 Cl.2H2O। जब एक क्लोरीन इनसाइड द ब्रैकेट आएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द ब्रैकेट चला जाएगा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि ये वाला क्लोरीन भी इनसाइड द ब्रैकेट चला जाए, तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा CrH2O taken 3Cl3 and then 3H2O, क्योंकि कोई फ्री मोबाइल वो नहीं है आपके पास क्लोराइड, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं होगा, राइट। नहीं, जब रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, आई थिंक रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर उन्होंने तो वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब रिएक्शन तो हो रहा है, इसका मतलब एक एक मिनट, माय बैड, ये हो जाएगा 6, सारे के सारे क्लोराइड आइंस आउटसाइड द ब्रैकेट। अब 3 मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा 3AgCl में, ये 1 मोल है, ये 3 मोल है। अगर आपने 0.0375 कैलकुलेट किया तो बताइए ये कितने होंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा बेटा आपके पास 0.0111 मोल्स। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, ये वैल्यू सी में लिखी हुई है, इसका मतलब ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया ये सी है, और इसमें एन की वैल्यू 0 है, क्योंकि इनसाइड ब्रैकेट कोई भी क्लोरीन नहीं है। तो फॉर्मूला बनेगा CrH2O taken 6Cl3। I hope it makes sense to you. B part. Two isomers have the same shape and their formula is this, where R is CH3. Only one of these isomer has dipole moment. Name the type of isomerism shown by this. बेटा ये है Ml2x2। जब Ml2x2 की सिचुएशन होती है तो आपके पास ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है,
right? Draw the structure of the two isomer. वही निकल के साथ अटैच करने हैं आपने। 3D डायग्राम बोले या ना बोले आप बना के दे दीजिए। ठीक है जी। ये दोनों क्या है, साइनाइड। ये भी क्या है आपके पास, साइनाइड। ये क्या है आपके पास, R3P। ये भी क्या है आपके पास, R3P। साइनाइड एक दूसरे के साथ डायगोनली अटैच कर दीजिए तो ये हो जाएगा R3P। और ये भी क्या हो जाएगा, R3P। सही। स्टेट विच आइसोमर हैज अ डायपोल मोमेंट। ऑब्वियसली ये डायपोल इस डायपोल से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब सिस आइसोमर होगा। बिकॉज dipole moment cannot cancel out। 1,2-diaminoethane is a bidentate ligand. What is mean by the term bidentate and ligand? Bidentate donates two lone pair, so the two dative bonds are formed. When when two lone pairs donate to form two dative bonds, ठीक है, ligands lone pair donors को कहते हैं। किसको लोन पेयर डोनेट करेंगे, ट्रांजिशन मेटल आयन को। पूरी बात लिख दीजिए, टू द ट्रांजिशन मेटल आयन। जब डोनेट कर देंगे तो क्या बनाएंगे, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड इज फॉर्म। वो कह रहे हैं देयर आर 3 complex ions with the formula this। सो इसमें कंडीशन है कि 2 बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट लाइगेंड्स, तो इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन सकता है, क्योंकि जहां बाइडेंटेट लाइगेंड हो वो ऑप्टिकल के साथ साथ सिस आइसोमर भी बनेगा, अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। Complete the three-dimensional diagram of the isomer in the boxes. You may use this to represent En। तो सबसे पहली तो बात ये कि हम 2 क्लोरीन एटम्स को अटैच कर लेते हैं, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये सिस हो गया, ये N है, ये N है, ये भी N है, ये भी N है। अब मैं इसका मिरर इमेज बना देता हूँ। ये N है, ये भी N है, ये N है, ये भी N है। सही है। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेजेस भी, और सिर्फ सिस। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्रांस हो जाए। और मैंने पढ़ाते हुए ये कहा था कि जब ट्रांस होता है इस सिचुएशन में तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि मिरर इमेज नहीं बन सकेगा। ठीक है। कॉपर फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया एंड En अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम 1 एंड 2। ये इक्विलिब्रियम 1 है, ये इक्विलिब्रियम 2 है। You can write the expression for the equilibrium constant K step 1 and K step 2 for equilibrium 1 and 2 include its units। बेटा ये बहुत आसान सी चीज है। प्रोडक्ट की concentration and charge has to be inside the bracket, remember। ये concentration of product आ गया, concentration of reactant is copper ions, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के 4 मोल्स हैं इसलिए पावर 4। आप जानते हैं ये यूनिट
इस यूनिट से कैंसिल होगा, तो आपके पास यूनिट बनेगा 1 मोल 4 DM-12। तो अगर मैं फाइनल यूनिट लिखूं तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स 4 DM-12। अब दूसरे के लिए लिखेंगे कॉपर En taken to 2 plus over concentration of copper ion, concentration of En power square। अगेन ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल, तो आपके पास यूनिट बनेगी 1 मोल स्क्वायर DM-6। तो फाइनल यूनिट बनेगा मोल इनवर्स 2 DM-6। फिर वो आपसे कह रहे हैं an equilibrium is set up when both En and ammonia ligands are attached to the solution containing copper ions as shown in equilibrium 3। Write an expression for the equilibrium constant K equilibrium 3 in terms of K step 1 and K step 2। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मैंने मेरे ख्याल से लिखा है K स्टेप 2 के लिए, राइट। तो ये न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे है, और इसके लिए हमने K स्टेप 1 लिखा था क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे, इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये हो जाएगा K स्टेप 2 ओवर K स्टेप 1। ठीक है, आई रिपीट, ये K स्टेप 2 था, ये K स्टेप 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये प्रोडक्ट साइड पे इसलिए डिनोमिनेटर में, ये रिएक्टेंट साइड पे इसलिए, सॉरी डिनोमिनेटर में, और ये प्रोडक्ट साइड पे इसलिए न्यूमरेटर में। The numerical value of these stability constants are shown. Calculate the value of K equilibrium 3। You just plug in the values in this formula and get the answer। ये हो जाएगा 5.3 into 10 to the power 19 divided by 1.2 into 10 to the power 13। जब हम डिवाइड करेंगे इन दोनों को तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.42 into 10 to the power 6। ठीक है, यूनिट क्या होगा आप जानते हैं। के स्टेप 2 की यूनिट क्या निकाली थी आपने, मोल इनवर्स DM-6। तो लिखिए उसकी यूनिट मोल इनवर्स 2 DM-6, और इसकी यूनिट क्या निकाली थी आपने, मोल 4 DM-12। तो जब मोल इनवर्स 2 इससे कैंसिल होगा, ये यूनिट इस यूनिट से कैंसिल होगी, तो आपके पास यूनिट बनेगी 1 मोल स्क्वायर DM-6। तो फाइनल यूनिट बनेगी मोल इनवर्स 2 DM-6। होल्ड, अच्छा ये -4 है, ओके ओके, वेट 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 वेट, -4, तो ये -2 होगा, तो फिर ये +2 हो जाएगा, और ये माइनस है, तो ठीक है, ये -6 हो जाएगा आपके पास, कॉम्प्लिकेटेड। DM-12 है बेटा ये ना, अब सही है, इट मेक्स सेंस ना। Delta S naught values for equilibrium 1 and 2 differ greatly and can be seen in the table. All values are at a temperature of 298 Kelvin। Explain why delta S naught equilibrium 2 is so different from equilibrium 1। तो आप बताइए, equilibrium 1 के अंदर 5 moles of reactants हैं, ये देखिए, जबकि equilibrium 2 में 3 moles of reactants हैं। तो आप बताइए, in equilibrium 1 5 moles of reactants,
are converted into 1 mole of product. ठीक है, और इक्विलिब्रियम 2 के अंदर क्या हो रहा है? 3 moles of reactants are converted into 1 mole of product. Three moles of reactants are converted into 1 mole of product. कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, तो बेटा डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एच नॉट चाहिए माइनस टी, डेल्टा एस नॉट भी चाहिए। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है हमारे पास इक्विलिब्रियम 2 के लिए -100, टेम्परेचर उन्होंने 298 केल्विन दिया हुआ है, एंट्रोपी की वैल्यू +40 है, जूल्स होती है, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा -111.42। सही है। What conclusions can be made about the relative feasibility of equilibria 1 and equilibria 2? तो आप देखिए इधर -74 है और इधर -111.42 है, तो ये मोर नेगेटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी फॉर इक्विलिब्रियम 2 इज मोर फीजिबल। तो हम लिखेंगे यहाँ इक्विलिब्रियम 2 इज मोर फीजिबल। और क्यों है मोर फीजिबल? क्योंकि मैंने क्लास में बताया था आपको पढ़ाते हुए कि complexes which are formed through bidentate ligands are more stable than the ones which are formed through monodentate ligands. इसलिए equilibrium 2 is more feasible because its delta H naught is more negative. Using data from the table suggest a value of delta H for equilibrium 3. Okay, equilibrium 3 ये था आपका। All right, ठीक है, अच्छी तरह गौर से सुनिएगा बात। इस इक्विलिब्रियम के लिए ना वैल्यू है आपके पास -92 और इस इक्विलिब्रियम के लिए वैल्यू है आपके पास -100, राइट? ये बात जहन में रखना। अब प्रॉब्लम ये कि जो तुमने इक्विलिब्रियम 3 बनाया है उसमें ये प्रोडक्ट साइड पे है, तो इसका मतलब इसकी जो, और यहाँ पर भी ये प्रोडक्ट साइड पे ही था, इसका मतलब इसकी जो -100 वैल्यू है डेल्टा एच की उसको मैं चेंज नहीं करूंगा, दैट विल रिमेन एज इट इज। मेरा पहला पॉइंट कि भाई डेल्टा एच फॉर सेकंड इक्विलिब्रियम रिमेन्स सेम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट साइड पे भी था, इक्वेशन 3 में भी प्रोडक्ट साइड पे ही है। मसला ये है कि ये -92 है और यहाँ पर ये प्रोडक्ट साइड पे, लेकिन इक्वेशन 3 के अंदर ये रिएक्टेंट साइड पे। तो अगर ये प्रोडक्ट साइड पे जब था -92 था, जब रिएक्टेंट साइड पे आएगा तो +92 हो जाएगा, यानी वैल्यू फ्लिप हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? -8 joules per mole. State the type of reaction that is occurring in equilibrium 2. Equilibrium 2 में एक स्ट्रॉन्गर लाइगेंड एक वीकर लाइगेंड को डिस्प्लेस कर रहा होगा, बिकॉज एक्वस का मतलब वाटर तो होगा, तो इसका मतलब EN वाटर को डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो इसका मतलब लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, ए पार्ट 1 स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीके एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो आप नोट करें, आप नोट करें पीके की वैल्यू
डिक्रीज होती है तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, राइट? So lower the pK value, the stronger the acid. State the mathematical relationship between pK and the acidity constant Ka. तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास pKa equals to minus log Ka. फिर वो कह रहे हैं give reasons for why pK value of chloroethonic acid is smaller than that of ethonic acid. इसकी वजह ये है कि क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसका स्ट्रॉन्गर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा. Chlorine is more electronegative element. It has a stronger negative inductive effect. So ionization of hydrogen easier also. Anion को stabilize कर देगा. Use the Zwitterian structure for amino ethanoic acid in aqueous solution to write an equation for its dissociation giving H plus ions. ठीक है, ये हो जाएगा Zwitterian structure for glycine. क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NH2 CH2 COO नेगेटिव में. Calculate the pH of 0.1 mole per dm solution of this. आप जानते हैं कि ये वीक एसिड है, वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी गिवन है और वीक एसिड की पीके की वैल्यू भी गिवन है. तो इस पीके की वैल्यू से मैं के की वैल्यू डिटरमिन करूंगा. मैं सबसे पहला स्टेप यहाँ पर करूंगा पीके ए इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग के ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 9 पॉइंट, सॉरी तो कैलकुलेट करनी है. तो ये है 9.8 इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए. तो यहाँ से के ए की वैल्यू आ जाएगी 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मोल पर डीएम. अब मैं उठाकर इसको इस एक्सप्रेशन में प्लेस करूंगा. पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग अंडर रूट के ए की वैल्यू होगी 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू कंसंट्रेशन है 0.100. तो यहाँ से पीएच की वैल्यू होगी 5.43. सही है. वो कह रहे हैं 10 cm³ sample of 0.1 mole per dm³ amino ethanoic acid was titrated with 0.1 mole per dm³ NaOH. After 20 cm³ of NaOH excess had been added, the pH was found to be 12.5. याद रखिएगा, ये आपको उसने टर्मिनेशन pH दे दी है और ये जो आपने कैलकुलेट किया ये आपकी इनिशियल pH है. यानी ग्राफ 5.43 से इनिशिएट होगा और 12.5 के ऊपर टर्मिनेट हो जाएगा. प्रॉब्लम है इसके वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट कहाँ पर आएगा, किस वॉल्यूम पे आएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. मैंने आपसे कहा था कि अगर वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन है एक्स एक्सिस पे तो सबसे पहले एसिड के मोल्स कैलकुलेट होंगे. एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो मैं एसिड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ. हो जाएगा 10 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 1000
तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0.001 मोल। आप जानते हैं NaOH और एसिड के दरमियान रेशियो 1:1 का होगा। अगर आपने 0.001 मोल कैलकुलेट किए हैं तो बताइए मोल्स ऑफ एल्कली कितने हो जाएंगे? सेम। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे NaOH की कंसंट्रेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो है आपके पास 0.1 मोल पर DMQ। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1000 cm³ में 0.1 मोल है NaOH के। अगर आपके पास 0.001 मोल है NaOH के तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? ये वॉल्यूम आ जाएगा बेटा आपके पास 10 cm³। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एंड पॉइंट जो है वो 10 cm³ के ऊपर ड्रॉ होगा। सो मैं क्या करूंगा, मैं pH 7 दूंगा और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एसिड की टाइट्रेशन है इसलिए 3 यूनिट्स अबव pH 7 लूंगा, 1 यूनिट लो pH 7 लूंगा, सो दैट द मीन ऑफ वर्टिकल सेक्शन हैज टू बी इन एल्कलाइन रेंज। इस बात का ख्याल रखेंगे। 8 9 10 11 12 12 समवेयर यहाँ पर आएगा। सो इसका स्केच यूं बन जाएगा आपके पास, सही है। 12.5 पे टर्मिनेट हो गया, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सही है। और ये दिखाएंगे आप यहाँ पर डॉटेड लाइन। दैट्स हाउ यू नीड टू ड्रॉ। याद रखिएगा ये शेप मैटर करती है, ये शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। पहले भी समझाया था मैंने आपको। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 7। Compound W, X, Y, and Z are isomers of each other with a molecular formula this. All four isomers contain a benzene ring. Only one of the isomer contain a chiral center. यार ये important बात है, और ये भी important बात है कि only one of the isomer contain a chiral carbon. The result of 6 tests are shown in the table below. Use the experimental results in the table above to determine the groups. In addition to the benzene ring present in the 4 groups, complete the table below. Identify the groups present in each isomer. बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इमीडिएटली फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब एसाइल क्लोराइड होगा, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिल रहे हैं तो कंफर्म हो गया कि भाई एसाइल क्लोराइड है। ठीक है। कोई और रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो एल्कीन है, ना एल्कोहल है, ना एल्डिहाइड है, और ना ही CH3CO ग्रुप अवेलेबल है। ठीक है। इसका मतलब इट हैज टू बी ओनली एसाइल हैलाइड। और एसाइल हैलाइड में भी हम स्पेसिफिकली किसको बोलेंगे? एसाइल क्लोराइड। अब देखो क्या होगा, डब्ल्यू का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। बेंजीन रिंग आपके पास है, एसाइल क्लोराइड भी आपके पास है, इन दोनों को ज्वाइन करो तो ये इस तरह से बनेगा। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C8H7Cl, 8 7 ClO, 8 7 ClO। नोट करते जाइएगा, 8 7 ClO। और आपके पास, सॉरी, ये एसाइल क्लोराइड बनेगा। आपके पास Cl और O दोनों हटा दीजिए,
7 कार्बन हटा दीजिए, 5 हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो 7 कार्बन है आपके पास, 5 हाइड्रोजन है आपके पास, Cl है, O है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो आप जाहिर सी बात है एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का ग्रुप अगर बेंजीन के साथ यहाँ अटैच करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, क्योंकि बेंजीन का एक हाइड्रोजन CH2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये मैंने W का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। आगे चलें। X कोल्ड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं हो रहा, यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। दीज टू रिएक्शन शोज कि आपके पास एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड जो है वो कभी भी रिएक्शन नहीं करते, उनका कोई टेस्ट नहीं आता। पेल येलो प्रेसिपिटेट से इसका मतलब CH3CO ग्रुप हो सकता है या फिर CH3CHOH ग्रुप हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, एल्डिहाइड नहीं है, अल्कोहल नहीं है, एल्कीन नहीं है। तो अब आपके पास है एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड एंड these either these two groups। तो या तो CH3CO ग्रुप है या फिर CH3CHOH है, हमें नहीं पता कि दोनों में से कौन सा ठीक होगा, हम तो अभी जजमेंट कर रहे हैं। और एक आपके पास एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड है, यानी बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर मैं X का स्ट्रक्चर निकालूं तो एक तो मेरे पास आ गया CH3CO, दूसरा मेरे पास आ गया बेंजीन रिंग और क्लोरीन। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूं तो ये बनेगा, ये क्लोरीन एज इट इज, ये CO और ये CH3 एज इट इज। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप नोट करें कितने कार्बन एटम है, 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी ठीक है मेरा, ये स्ट्रक्चर भी ठीक है मेरा। देन वो कह रहे हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म स्लोली, स्लोली मींस इट इज एन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अगर एसाइल हैलाइड होता तो इमीडिएटली फॉर्म होते प्रेसिपिटेट्स। स्लोली कर रहा है इसका मतलब अल्काइल हैलाइड है। कंफर्म हो गया कि अल्काइल हैलाइड है। CH3CO ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड अवेलेबल है क्योंकि रेड प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, अल्कोहल नहीं है, एल्कीन नहीं है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा इसमें, ठीक है, और इसमें बेंजीन के साथ ये भी होगा, ठीक है, एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड। अब मैंने इन दोनों को एडजस्ट करना है इस तरह से कि मेरे पास Y का स्ट्रक्चर आ जाए। तो एक आपके पास CHO है और एक आपके पास ये है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि मैं इन दोनों को, अब मैं इस तरह से, इन दोनों को मैं इस तरह से अरेंज करूंगा कि मुझे कायरल सेंटर भी तो मिले, क्योंकि एक के आइसोमर ऐसा है जिसके पास कायरल सेंटर है। तो कायरल सेंटर इसमें भी नहीं हो सकता था, इसमें भी मुमकिन नहीं है, इसमें मुमकिन है। कैसे मुमकिन है जरा देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये CH है, ये Cl है और ये CH है, ये आ गया आपका कायरल, ठीक है। तो मेरा ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ठीक है। इसमें 6 7 8 का कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन है। तो ये भी मेरा स्ट्रक्चर ठीक हो गया। Z की बात करते हैं, ये एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड हो जाएगा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, इसमें एल्डिहाइड नहीं है, डीक्लोराइज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें याद और कोल्ड के एमिनो फोर्स से रिएक्शन कर रहा है और डीक्लोराइज कर रहा है, इसका मतलब एल्कीन है इसके अंदर, ठीक है।
क्योंकि एल्कीन हमेशा कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करता है। तो इसमें एल्कीन हो गया, इसमें एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड हो गया, एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, डीक्लोराइज हो रहा है, इसका मतलब ये फिनोल हो गया, क्योंकि फिनोल का टेस्ट है। सही है, तो इसमें एल्कीन है, फिनोल है, ओके, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। एल्कीन है, फिनोल है, और एसाइल और एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड भी। अब मसला ये कि बेंजीन की तो एक ही रिंग है, राइट, है ना, बेंजीन की एक ही रिंग है, एक से ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि 8 कार्बन एटम्स है। तो इसका मतलब ये 3 फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ एक ही बेंजीन रिंग से अटैच करेंगे आप। तो ये हो जाएगा बेंजीन OH Cl CH डबल बॉन्ड CH2। सही है, ये बन रहा है फॉर्मूला C7H8ClO, और ये स्ट्रक्चर भी मेरा बिल्कुल ठीक है। तो B part 1 में कह रहे हैं use the information in A to suggest the structure of each of these isomers and draw these in the boxes. W आपके पास था CH3 COCl, X आपके पास था aromatic alkyl halide and ketone, if you remember, ये आपके पास था aldehyde and aromatic alkyl halide, और ये आपके पास था फिनोल एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड, ये एल्कीन हो गया, ये एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड हो गया, और ये फिनोल हो गया। Draw a circle around a chiral center in one of the structure above, वो ये है, ठीक है। I hope it makes sense to you. Question number 8. The amino acid tyrosine can be synthesized from phenol by route shown. Name the mechanism occurring in the following steps. Step 1. बेटा देखें, एक हाइड्रोकार्बन चेन ऐड हुई है, तो इसका मतलब बेंजीन में अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन, ये CH2 है ना, एक हाइड्रोकार्बन चेन आपने ऐड की है, तो इसका मतलब अल्काइलेशन किया है। तो अल्काइलेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि बेंजीन पे होने वाले तमाम रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सही है। स्टेप टू में देखिए, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, साइनोहाइड्रिन में, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसी कार्बन के साथ CN भी है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। नेम व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग इन स्टेप 3। स्टेप 3 में नोट करो, CN कन्वर्ट हो रहा है COOH में, बाकी पूरा मॉलिक्यूल एज इट इज है, इसका मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है यहाँ। स्टेप 1 के रिएजेंट एंड कंडीशंस बताने, राइट। तो मैंने कहा था स्टेप 1 में अल्काइलेशन हो रही है, तो CH2Cl CHO, कंडीशन AlCl3 कैटलिस्ट होगा, तो अल्काइलेशन में यूनिट कैटलिस्ट। स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है, साइनोहाइड्रिन बन रहा है, तो साइनोहाइड्रिन बनने के लिए भाई आप हमेशा क्या यूज करते हो, HCN यूज करते हो, सोडियम साइनाइड कैटलिस्ट होता है, हीट यूज करते हैं आप। स्टेप 3 में क्या हो रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए आप यूज करते हैं एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और कंडीशन क्या यूज करते हैं आप, रिफ्लक्स
स्टेप 5 में क्या हो रहा है आप नोट करें, इस Cl की जगह NH2 आया है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा है। इसका मतलब अमोनिया यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इथेनॉल। आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि अमोनिया यूज करें, सील ट्यूब यूज करें और हाई प्रेशर यूज कर लें। उसके बाद ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ टायरोसिन विद एन एक्सेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। ये भी इजी है बेटा। टायरोसिन, टायरोसिन का स्ट्रक्चर यहां से कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको लिखते हैं, राइट। जब मैं NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा ना, तो बेटा मेरे पास सिचुएशन ये बनेगी, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से भी H हटेगा और इन दोनों की जगह पर Na अटैच हो जाएगा। अब HCl से करवाना है, तो जब HCl से करवाएंगे तो ऑब्वियसली ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे, तो जब आप एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो एक ब्रोमीन जो है वो यहाँ ऐड होगी OH एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से, और एक ब्रोमीन यहाँ पर ऐड होगी। ठीक है बेटे। बी पार्ट, the dipeptide phi TYR has the following structure. Okay, a mixture of this dipeptide and its two constituent amino acids phi and TYR was subjected to electrophoresis in a buffer solution at pH 12. याद रखिएगा pH 12 है buffer solution की pH। ठीक है। At the end of the experiment, the following results were seen: spot R and S remain very close together. Okay. Three spots are due to the three species P, TYR and dipeptide. याद रखिएगा ये dipeptide है, सही है। Which species is responsible for spot P? तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज होना चाहिए या सबसे कम मास होना चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स डू वन थिंग, हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। सही है, हम सब जानते हैं कि ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये बनेगा आपके पास NH2 COOH, ठीक है। और दूसरी प्रोडक्ट बेटा बन रही है NH2 COOH, benzene ring, this thing, और ये, ठीक है। ये आपके पास क्या है TYR और ये आपके पास क्या है Phi, ठीक है, और ये आपका Phi TYR का डाइपेप्टाइड है। तो जाहिर सी बात है इसका मास सबसे कम होगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो P जो है वो TYR हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज और, नहीं बेटा मास का तो है, एक चीज और, जैसे TYR,
ये फी है बेटा डेटा बुकलेट में, ये TYR है और ये बेटा फी है। डेटा बुकलेट से पता डिटरमिन किया मैंने, ठीक है। ये TYR है और ये फी है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर मैं अलर्ट रहना, अगर मैं pH 12 का बफर सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब जितने एसिडिक ग्रुप है वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉल्ट में। तो फी का सॉल्ट ये बनेगा, देख लो बेटा एक बार, ठीक है। और TYR का सॉल्ट ये बनेगा, और आप जानते हैं कि फिनोल भी एसिडिक होता है, तो एल्कली से वो भी रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, सही है। तो अब आप नोट करो, अंडर दिस बफर सोल्यूशन इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब TYR विल डिफ्लेक्ट मोस्ट, इसलिए P जो है वो TYR होगा। नाउ इट मेक्स सेंस, ये फी है और ये TYR है, और ये मैंने दोनों कहां से जज किए बेटा, डेटा बुकलेट से जज किए। अब लिखो इसको, TYR because it has more charge, so it covers the most distance. Suggest why the other two species give spot R and S that are so close together, दोनों का molecular mass almost same होगा, because both of them have almost similar or higher molecular mass। ठीक है बेटे, ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए।